Good morning, students. Today I am going to teach you from your civics textbook, lesson number 5, Judiciary. In this lesson, we will discuss about why do we need courts, what is the role of judiciary, what is an independent judiciary, what is the structure of court in India, different branches of the legal system. Does everyone have access to the courts? Okay? Have a look at these people. My partner has breached our contract. My landlord has seized my land. My brother has abducted my father's wealth. Whom do you think they should approach to get justice? Yes, they should approach the court to settle their disputes. Every day, our newspapers and news channels are filled with articles and headlines, and most of them are centered on a case or an issue. But have you noticed one thing? Most of these are issues related to either civil or criminal cases, which can be resolved by an important legal body, and that is our judiciary system. Yes, what is judiciary? All the courts at different levels of the country put together are called the judiciary. आज हम न्यायपालिका के विषय में पढ़ेंगे. न्यायपालिका क्या है? देश के जितने भी कोर्ट की व्यवस्था है उन्हें एक साथ हम रखकर उसे न्यायपालिका कहते हैं. All the courts at different levels of the country put together are called the judiciary. Next, why do we need courts? हमें कोर्ट की ज़रूरत क्यों है? जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है? Just like every match needs a referee, every competition require a judge. है ना? हर मैच में क्या है? एक रेफरी होता है और हर कंपटीशन में एक जज होता है. So every country also require a strong judicial system. उसी तरह हर कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत है. As we have studied in the last lesson that in India we have the rule of law. We have the rule of law. Do you remember this? What is the meaning of rule of law? Yes, rule of law, which means every citizen in the country, they are equal before the law. Every citizen in our country, they are equal before law. हम लास्ट अध्याय में पढ़े थे हमारा कानून का शासन है. कानून का शासन का मतलब क्या है? हर नागरिक जो भारत में रहते हैं वो कानून के समक्ष बराबर है. To enforce this rule of law, to enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the set of courts that a citizen can approach when a law is violated. To enforce this rule of law, we have a judicial system that consists of the set of courts that a citizen can approach when a law is violated. इस कानून की शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जुडिशियल, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, ताकि कोई भी अगर हमारे अधिकार या हमारे जो कानून है उस पर कोई उल्लंघन करता है तो हम कोर्ट में जा सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है. You might have seen this statue in movies and books. This is Justitia, the goddess of justice, which personalized the judicial system across the globe. Okay? In India, we have a independent judiciary system. In the last lesson, we studied that the organs of government. Do you remember? Yes, the organs of government, that is
Yes. Legislature, executive, and judiciary. Yes. What is legislature? That is the law-making body. What is executive? Implementation of law. And judiciary, that is protecting. Okay, so we studied in our last class that there are three organs of government: legislature, that is law making body, and executive, implementation of law, and judiciary का काम क्या है? Protecting the law. As an organ of the state, the judiciary plays an important role in the functioning of Indian democracy. क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक organ है, ये जो judiciary, and it play an important role in the functioning of Indian democracy. So next we will study about what is the role of the judiciary, or what is the work of judiciary. Judiciary का काम क्या है, role क्या है? We know that courts have to decide on lot of issues. They do not only decide what the citizen can or can't do, but they also pronounce a sentence to those who are found guilty. हमें मालूम है कि न्यायपालिका को बहुत सारा काम है, खाली सिटीजन क्या करना चाहिए, उनका अधिकार क्षेत्र क्या कैसे रहना चाहिए, यही खाली नहीं, जो गलत काम करते हैं उसको पनिशमेंट भी कोर्ट देता है. बेसिकली they can decide how a child should be treated in a school, how the water of a river should be shared between states. They can punish people for particular crimes also. So the role of the judiciary can be broadly classified into three. First, dispute resolution. Second, judicial review. Third, upholding the law and enforcing fundamental rights. तो इसके आधार पर हम जुडिशरी को तीन भागों में उसके काम को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है डिस्प्यूट रेसोल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्यूट? डिस्प्यूट आपको मालूम है, लड़ाई होना, किसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट होना. तो इस तरह का उसका रेसोल्यूशन कौन करता है? जुडिशरी करता है. तो क्या किसका बीच में डिस्प्यूट होता है? डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन, दो सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट होता है. एंड डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में डिस्प्यूट होता है. एंड डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, टू स्टेट के बीच में या स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई होता है, झगड़े होते हैं. तो इस तरह के मामले कहाँ जाते हैं? कोर्ट उसका न्याय देता है. दैट इज डिस्प्यूट रेसोल्यूशन. नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू. Judicial review. Judicial review means the judiciary is the final interpreter of the constitution. यानी कि हमारे संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला संस्था है ये जुडिशरी. इंटरप्रेटर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको सही तरीके से व्याख्या जो करता है वो जुडिशरी करता है. एंड दे स्ट्राइक डाउन दोस लॉज that are passed by the parliament if it believes that they violate the basic structure of the constitution. अगर जुडिशरी को लगता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून पारित किया है, पास किया है जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जैसा नहीं है, तो उसको वो स्ट्राइक आउट कर सकता है. दैट इज जुडिशियल रिव्यू. एंड थर्ड है अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. नेक्स्ट जुडिशरी का काम है कि अपहोल्डिंग द लॉ को अपहोल्ड करना और एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. हमें कितना फंडामेंटल राइट्स मिला है? फर्स्ट लेसन में पढ़े 6. तो उस फंडामेंटल राइट का रक्षा करना किसका काम है? जुडिशरी का काम है. तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बोलना चाहती हूँ. हकीम शेख एक एग्रीकल्चर लेबरर, ही फेल फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन. वो एक रनिंग ट्रेन से
गिर गया and his condition became very worse as several hospitals did not admit him. उसका कंडीशन बहुत ख़राब होता गया क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं कर रहा था. On hearing his case, the Supreme Court ordered, और सुप्रीम कोर्ट कहा कि ये जो शेख हकीम जिसका ये ऐसा केस हुआ जिसके साथ उसका कंडीशन वर्स हुआ क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल उसको एडमिट नहीं कर रहा था, इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को उसको कंपनसेशन देना होगा. उसका जितना भी नुकसान हुआ उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा. एंड फर्दर ऑर्डर दैट ये ब्लूप्रिंट होना चाहिए ताकि कोई भी पेशेंट अगर ऐसा इमरजेंसी केस में आता है द हॉस्पिटल हैड टू एडमिट दैट. अब क्लियर हुआ क्योंकि एक जन का केस से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि कोई भी इमरजेंसी केस में क्या होता है, एक्सीडेंट वगैरह होने से जल्दी कोई भी हॉस्पिटल लेते नहीं थे क्योंकि कोर्ट का केस ये सब होगा इसका वजह से. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि कोई भी केस ऐसा इमरजेंसी आता है तो हॉस्पिटल को क्या है उनको एडमिट करना पड़ेगा. तो ये मालूम हुआ कि ये जो जुडिशरी है ये कोर्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करता है. और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कह दिया कि आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ है. तो ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ, ये राइट टू लाइफ में ही आता है राइट टू हेल्थ. ओके, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस राइट टू हेल्थ. राइट टू लाइफ में आता है राइट टू हेल्थ. इसीलिए कोई भी सिटीजन के साथ ऐसा आगे नहीं होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, one key feature of the Indian judiciary system is that it is independent. ये स्वतंत्र है हमारा judiciary system. It means judges are free to make decisions, pass judgment without any pressure from the government or other powerful person. हमारे जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है. इसका मतलब है कि जो जजेस है वो फ्री होकर कोई भी जजमेंट दे सकता है बिना कोई गवर्नमेंट प्रेशर का, बिना कोई पॉलिटिकल पावरफुल पर्सन का प्रेशर से स्वतंत्र होकर वो न्याय दे सकता है. नहीं तो क्या है, अगर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, वो कभी ठीक तरीके से न्याय नहीं दे सकता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिड द बेस्ट बाय गिविंग अस एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम. दिस इज डन मेनली to separate the powers. Basically, what this means is that other branches of the state like the legislative and executive cannot interfere in the work of the judiciary. Executive और legislature judiciary के काम में दखल अंदाज नहीं देंगे. The courts are not under the government and do not act on their behalf. All the judges in the High Court as well as Supreme Court are appointed without any interference from the other government bodies. हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है तो कोई भी दूसरा जो गवर्नमेंट का बॉडी है उससे प्रेशर नहीं होता है. Once appointed to this office, it is very difficult to remove a judge. एक बार जज का नियुक्ति होता है तो उन्हें उस पद से हटाना बहुत मुश्किल है. हटा नहीं सकते ऐसा नहीं, इम्पीचमेंट के द्वारा हम जजेस को हटा सकते हैं. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव जज फ्रॉम हिज पोस्ट. क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता के लिए, ताकि वो स्वतंत्र होकर न्याय दे सके. अगर वो स्वतंत्र नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो स्वतंत्र रूप से न्याय नहीं दे सकता. Okay, and it is the independence of the judiciary that allows the court to play a central role in ensuring that there is no misuse of power by the legislative and the executive. उनके इंडिपेंडेंस के द्वारा ही, जुडिशरी को जो इंडिपेंडेंस दिया है, इससे ही ये कंट्रोल करता है किसके ऊपर, स्टेट का दूसरे ऑर्गन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर, कि वो अपना पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं. नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट. हमारे इंडिया का कोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है?
our court structure, it is a 3-tier system. एक 3-tier system है. देखिए, there are 3 different levels of court in our country. हमारे country में 3 level court है. First, एक पिरामिड की आकृति में दिया है. First, district और session court. सबसे निचले स्तर पर, सबसे लोएस्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट. ये क्या है? डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल. हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल में रहता है. इवन हमारे अंडमान निकोबार में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 3. ओके, तो यहाँ पोर्ट ब्लेयर में एक है, मायाबंदर में एक है, निकोबार में है. इवन पंचायत लेवल में भी हडबे कैमलबे में हमें दिख देते हैं. तो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड उसके ऊपर है हाई कोर्ट एट स्टेट लेवल्स. हर स्टेट लेवल्स में, स्टेट लेवल में एक हाई कोर्ट होता है. एंड अभी भारत में 25 हाई कोर्ट है. ठीक है. एंड ये 25 हाई कोर्ट, उसका बेंचेस जो है कभी कभी 2 स्टेट्स में होता है या यूनियन टेरिटरी को भी उसको रखता है. जैसा हमारे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट बेंचेस, हाई कोर्ट कलकत्ता का हाई कोर्ट बेंचेस यहाँ पर आते हैं. ठीक है. और सबसे टॉप में है सुप्रीम कोर्ट एट नेशनल लेवल लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. देयर इज ओनली 1 सुप्रीम कोर्ट. ओके, एक है, दैट इज सुप्रीम, हाईएस्ट, सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम कहते हैं. ये नेशनल लेवल पर लोकेटेड एट न्यू दिल्ली. ओके, क्लियर हुआ. द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्ट, कितना स्ट्रक्चर, कोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है. सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन डिस्ट्रिक्ट और सेक्शनल कोर्ट. ओके, और एक बार आप समझ लीजिए इसको, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया है. स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है एंड सबसे लोवेस्ट में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. ओके, सुप्रीम कोर्ट. और सुप्रीम कोर्ट जो है एक है, हाई कोर्ट 25 है. अब ये डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है. ठीक है. तो ये हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट है इंडिया में. नेक्स्ट, High courts were first established in the 3 presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862. 1862 में ऐसे थे. Well before the Supreme Court, the day India became a republic on 26 January 1950 was when the Supreme Court was first established. उससे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं थे. जो प्रेसिडेंसी सिटीज था बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में 1862 में हमारा हाई कोर्ट था. और जब हमारे कंट्री रिपब्लिक बने, इंडिया रिपब्लिक कब बना? 26 जनवरी 1950. ओके, 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम रिपब्लिक और उसी समय हमारा सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. इंडियन जुडिशरी कंप्राइज द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, followed by the high court, subordinate courts at the district level. The Supreme Court, the High Court and the district courts are all linked to each other. जैसा अभी मैंने आपको बताया और एक बार बता देती, ये जो district court, high court and supreme court. Okay, at the top में supreme court है, then high court, okay, then district court. ये बता दिया था सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? नेशनल लेवल पर. ओके, नेशनल लेवल पर एक ही है. हाँ, और हाई कोर्ट कितना है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट है. वो 2 स्टेट एक साथ होता है, यूनियन टेरिटरी भी उसके साथ है. हमारे अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो कलकत्ता से है एंड कलकत्ता का हाई कोर्ट बेंच सिटिंग यहाँ पर होता है. और है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में, इंडिया में जितना भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होता है या तहसील लेवल पर एक कोर्ट होता है. और दूसरा इसका विशेषता ये है कि ये फीचर है कि दीज कोर्ट आर interlinked. The Supreme Court, the High Court and the District Court are all linked to each other. Hence the judicial system is also known as integrated judicial system. इसीलिए इसको integrated judicial system बोलता क्योंकि एक दूसरे से लिंक है. And the decision made by the Supreme Court are binding on all other courts in India. And Supreme Court जो decision लेता है वो बाकी सारे कोर्ट को वो मानना पड़ता है.
And another way to understand their integration is through their appellate system. यानी कि this means a person can approach to the High Court if he is not satisfied with the District Court. Okay, if he is not satisfied by the judgment of the District Court, then he can go to the High Court, can appeal, or High Court के judgment से भी if he is not happy, then he can appeal to the Supreme Court. तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है एक appellate सिस्टम है. इसका एक एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया, मैं बहुत शॉर्ट करके आपको बताना चाहती हूँ. एक लक्ष्मण, he married to a 20-year girl, Sudha Goyal, on February 1980. He married to a 20-year girl, Sudha Goyal. And December 1980 में Sudha died in the hospital due to burn. And her parents, Sudha का जो पेरेंट्स है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया. और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब इनका हियरिंग हुआ तो उनके जितने भी पड़ोसी थे उनका विटनेस लिया, एविडेंस लेकर ये डिसीजन लिया, ये उनका जजमेंट था कि लक्ष्मण के साथ उनके मम्मी, उसके ब्रदर सब उस लोग एक फ्लैट में रहते थे. तो ये जो लक्ष्मण, उसकी मम्मी और ब्रदर ने मिलकर इसको जलाया और उन तीनों को अक्यूज किया, पनिशमेंट दिया, सेंटेंस टू डेथ. ओके, तीनों को पनिशमेंट मिला. क्लियर हुआ? लक्ष्मण को, लक्ष्मण का मम्मी को और लक्ष्मण का ब्रदर को पनिशमेंट मिले. Then in 1983 the accused person, that means Lakshman, his mother and his brother appeal a case against the verdict of district court to high court. हाई कोर्ट में अपील किया. जो इस लोग जो जजमेंट दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील किया. एंड इन द हाई कोर्ट द आर्ग्यूमेंट, आफ्टर जो आर्ग्यूमेंट हुआ वकील के, उसके बाद जज ने ये डिसीजन दिया कि वो जो केस दैट वाज एन एक्सीडेंट केस एंड तीनों अक्यूज पर्सन को फ्री कर दिया, बरी कर दिया. ओके, जब ये बात पता चला वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोग बहुत फील किए क्योंकि ये डवरी का एक केस था, उनको सुधा को जलाया गया था. तो इन 1985 द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन अपील एंड हर parents, Sudha's parents appealed a case against the verdict of High Court in Supreme Court. हाई कोर्ट जो वर्डिक्ट दिया उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, अपील किया. अपील बोलते हैं इसको, जब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में हम जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपील करना. ओके, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया एंड सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द आर्ग्यूमेंट्स सुनने के बाद ये डिसीजन लिया कि इसमें लक्ष्मण एंड लक्ष्मण का मदर जो है दोनों अक्यूज है एंड लक्ष्मण का भाई को बिना एविडेंस के कारण उसको छोड़ दिया. ठीक है, तो आप देखें किस तरीके से एक केस हुआ. यहाँ क्या तीनों को सजा दिया, लेकिन जब हाई कोर्ट किया, अपील किया, तो उसमें तीनों को बरी कर दिया. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट में दो को सजा मिलता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों को मिलता है. तो इससे हमको पता चलता है हमारा जो जुडिशरी सिस्टम क्या है, एक अपेलेट है. ये एक हम अपेलेट फॉर्म है जहाँ पर हम अपील कर सकते हैं. दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन अपील टू ए हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट जस्ट. इज इट क्लियर? और अपने कोर्ट के बारे में ज़्यादा जानना कि सुप्रीम कोर्ट एक है, दैट इज़ इन दिल्ली, एंड हाई कोर्ट हमारा 25 है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में है. इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. और दूसरा है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस. आपके स्क्रीन में देखिए क्रिमिनल केसेस में क्या क्या आता है: असोल्ट, थेफ्ट, मर्डर, हरासमेंट एंड डॉरी. सिविल केसेस में आता है लैंड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी डील्स, डिवोर्स एंड रेंट एग्रीमेंट. ओके, नेक्स्ट, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट? क्या हर एक जन न्याय प्राप्त कर सकता है, न्याय के लिए जा सकता है? एवरी सिटीजन हैज द राइट टू जस्टिस थ्रू द कोर्ट. हर एक नागरिक को
न्याय मिल सकता है। लेकिन इन रियलिटी में, जब हम रियलिटी में देखता है, द लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ पेपर वर्क एज वेल एज टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम इसमें लगता है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द पुअर एज मोस्ट ऑफ दम आर डिपेंड ऑन देयर डेली वेजेस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब क्या है, डेली वेजेस से अपना गुजारा करता है, तो इनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी। In response to this, the Supreme Court in 1980 started a new mechanism of PIL, Public Interest Litigation, यानी कि जनहित याचिका। इसमें क्या होता है? It allows any individual or organization to file a PIL in the High Court or the Supreme Court on behalf of those whose rights were being violated. ये PIL में क्या होता है कि यदि एक पर्सन वो उनका अधिकार क्षेत्र वंचित होता है तो वो केस फाइल नहीं कर सकता है, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए केस फाइल कर सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसी को बोलता है PIL या जनहित याचिका। द मिड डे मील, जो आपको स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है ना, ये भी एक PIL का कारण ही हुआ है। वो किस तरीके से हुआ? उड़ीसा और राजस्थान में बहुत सूखा था 2001 में, तो उस समय जो थे बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे और हमारे गोदामों में बहुत सारे चावल और गेहूं रखे हुए थे। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन ने केस फाइल किया, क्योंकि ये PIL किया, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हर एक नागरिक को क्या है, भोजन मिलना चाहिए, इवन जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी मिड डे मील देना चाहिए। एंड द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, जो आर्टिकल 21 जैसा मैंने पहले भी बताया, उसमें राइट टू लाइफ है, उसमें राइट टू फूड को भी इंक्लूड किया एंड इंक्लूड द मिड डे मील स्कीम। तो इस तरीके से दे देयरफॉर ऑर्डर्ड द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। तो आर्टिकल 21 में हम लोग देखे राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। तो जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, इसमें इंक्लूड किया कि राइट टू फूड भी उसी में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखें राइट टू हेल्थ, उसमें इंक्लूड किया, क्योंकि राइट टू लाइफ में आता है राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, और एक है राइट टू लाइवलीहुड। वो हम लास्ट क्लास में आपको कंट्रोवर्सी केस के बारे में जब पढ़े थे, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बॉम्बे के कि जो पेमेंट में बिक्री जो कर रहे हैं उनको हटाना चाहिए, तो उनका लाइवलीहुड को हनन करता है। तो वो केस में भी राइट टू लाइवलीहुड को किसके अंतर्गत आया? राइट टू लाइफ में लेके आया। तो ये सारा हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, तो ये राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड एंड राइट टू लाइवलीहुड किस में आता है? राइट टू लाइफ में आता है। इसीलिए मिड डे मील स्कीम जो है शुरू किया, एंड दे देयरफॉर ऑर्डर्ड द स्टेट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू प्रोवाइड फूड फॉर ऑल इंक्लूडिंग द मिड डे मील स्कीम। द अदर इश्यू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पीपल इज दैट the court takes a long number of years to give a verdict or judgment। और एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि a court takes long time, long year to गिव ए वर्डिक्ट, एक जजमेंट देने के लिए बहुत समय लेता है। जैसा भी निर्भया केस हम लोग देखे कि कितना साल लगा उसका, मतलब एक वर्डिक्ट, एक जजमेंट देने के लिए, तो ऐसा होता है। तो इसीलिए कहता है कि दैट्स वाई वी यूज द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनेड। मीन्स जस्टिस जितना डिले करता है उसका मतलब क्या होता है? जस्टिस डिने करता है, मतलब हम लोग केस करते हैं लेकिन अगर हमको उसी टाइम जजमेंट नहीं मिलता है तो क्या हमारा वो ऐसा फील होता है कि वो डिने हो गया, मतलब एक कभी कभी क्या होता है जो केस के वो व्यक्ति मर ही जाता है। तो डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डिले होता है हमारा जुडिशरी सिस्टम में। However, in spite of this, the judiciary has played an important role in democratic India, serving as a check on the powers of the executive and legislature, as well as protecting the fundamental right of the citizen. The people who had written our constitution had a beautiful vision, and that is why they were able to envision a system of courts with an independent judiciary. Hope you understood this lesson. Thank you.